Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and you are watching Physics World. In today's lecture, we will be talking about some most important questions for physics, and the chapter is rotational mechanics. And I have uploaded or I have posted a post in the community section that I am uploading videos for practice session for the half yearly examinations for the subjects PCM for class 11th. Yes, so this is the first lecture and I am going to discuss the most important questions of rotational mechanics. This is the part 1 actually. We are discussing something about 15 to 20 questions in all. So in this lecture we will talk about 10 to 12 questions, yes, and out of that some are MCQs, some of them would be case based, yes, and the rest all are short answers and long answer type questions. So let's start the video and see what are the questions for us today. Yes, so first of all let us start with the MCQ type questions, because MCQ type questions are much more tricky, I would say. So let's start. So फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं MCQ का. एक मेरे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है. फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि वी हैव टू masses. Yes, two masses we have. M1 equals to 2 kg. I am not writing the whole question, only the information given in the question I am writing. So there are two masses, 2 point masses, M1 2 kg and M2 we have 4 kg. Yes, and they are moving with certain velocity, and their velocities are V1 equals to 2 meter per second and V2 equals to 10 meter per second. Yes, so you can imagine a system of particles. Yes, this is the question from system of particles. The whole name of the chapter is system of particles and rotational motion. Center of mass वाला जो topic होता है that come under the system of particles. Yes, so there are system of two particle system. Yes, and one is this, another one, let's say this. So this is M1 of 2 kg mass, this is M2 of 4 kg mass. They both are moving in certain directions. We don't know the directions, but we know that their velocities are something like that. Yes, one is moving with 2 meter per second, another one is moving with 10 meter per second. So we have to find what we have to find is their center of mass velocity. Yes, we have to find the velocity for center of mass. So how can we find it? Yes, so your options are, आप सॉल्व कर लीजिएगा. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 5.3 मीटर पर सेकेंड, 7.4 मीटर पर सेकेंड, 6.4 मीटर पर सेकेंड, 8.1 मीटर पर सेकेंड. ये 7.3 है, वेरी सॉरी. ठीक है, 5.3 मीटर पर सेकेंड, 7.3 मीटर पर सेकेंड, 6.4 meter per second and 8.1 meter per second. So we have to find the velocity for center of mass. So let's see how can we find. So it is simple, very simple. जैसे आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. दैट्स द फॉर्मूला फॉर VCOM also, ACOM also. I would like to write it here. Yes, so पोजीशन वेक्टर का जो होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर. yes, these are the position vectors. Yes, from the origin, m2 r2 vector. You have to visualize this. Let's say these are two point masses and this is the origin, this pen is the origin. So this and this are the position vectors. But if we talk about x and y coordinates, so x coordinate of this object is this much, this is this much, and y is this much, and for this y is this much. But the position vectors are from origin to this point, from origin to this point, straight line. Yes, so there is a difference between position vectors
and coordinates. So RCM equals to M1 R1 plus M2 R2 vector and upon M1 plus M2. This is one formula for RCOM, and there is also another formula for XCOM, YCOM, ZCOM. You have to just replace it by X, Y and Z coordinates. But VCOM क्या होगा? VCOM, what is VCOM? Is M1 V1 plus M2 V2 divided by M1 plus M2. This is the formula. Yes, this is the formula. So let's apply this formula. Also, there is also another formula, acceleration. There is also acceleration of center of mass का formula भी होता है, and that is nothing but M1 A1 plus M2 A2 upon M1 plus M2. So all the formulas are the same, just you have to replace the values. Yes, you can derive these two equations from this one. So I hope that's clear. बस हमें क्या करना है, ये वाली इक्वेशन को हमें फाइंड करना है. सो चलिए फाइंड करते हैं. सो लेट्स सी आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे. आई हैव गिवन यू सम टाइम टू फाइंड आउट द आंसर्स. यस, सो काउंटडाउन शुरू होती है. 5 4 3 2 1. पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन. सो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में. सो VCOM comes out to be M1 2 V1 2 plus M2 4 V2 10 upon 2 plus 4. 2 2 are 4, 4 10s are 40 upon में 6, 44 upon में 6. So this comes out to be something about 7.3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो अब काटेंगे तो 6 m 42 एंड 2 रह जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा 6 3 18. सो आपका वहाँ से 7.3333 आंसर आ जाएगा. सो दैट्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू पार्टिकल्स. यस, मतलब अगर हम इसको फिजिकली विजुलाइज करें, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा. सो लेट्स से दीज टू आर दीज टू, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये दोनों क्या है, ये M1 एंड M2 है. तो दोनों जो है चल रहे हैं किससे, दोनों चल रहे हैं 10 से, एक चल रहा है एक 2 से चल रहा है. किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है. अब ये तो सीधे सीधे चलेगा या ऐसे दोनों सेम में चलेंगे, बट ये दोनों कैसे भी चल सकते हैं. सो VCOM जो 7.3 मीटर पर सेकेंड आया है, तो क्या उसका मतलब क्या कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे कहीं लाई करेगा, तो वो किस वेलोसिटी से चल रहा होगा. ठीक है, इन दोनों की वेलोसिटी दे रखी है एंड वी हैव गिवन द masses of that particles also. So this is the way you can solve this question and this is the MCQ question. बहुत ही easy question है, तो समझाने में मुझे टाइम निकल गया, बाकी question is very easy. So let's move towards the next question. So let's move to the next question. Next question is very very important. बहुत ही important question है, मेरे भी एग्ज़ाम में आया था. I have uploaded the video for the half yearly examinations. Yes, so बहुत ही important question है. क्या है वो, that the question is that question has many variations also. किसी भी वेरिएशन में वो आ सकता है. सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, you have also seen that question. yes, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है वो, बट समझना बहुत ज़रूरी है. yes, the radius of the earth becomes half. Find the duration of the new day. जो नया दिन निकलेगा उसका हमें ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है. अगर रेडियस अर्थ का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आना ही आना है क्वेश्चन किसी भी हालत में. ठीक है, सो इसके मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ. 8 आवर्स, 6 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स. ठीक है, बच्चे याद करके चले जाते हैं इसको 6 आवर्स. ठीक है, 6 आवर्स इसका आंसर है, याद करके चले भी जाते हैं बच्चे. लेकिन मेरे पेपर में थोड़ा सा गड़बड़ हुई. इसमें क्या आया, सब्जेक्टिव में आ गया, एंड सब्जेक्टिव में दिक्कत होगी बच्चों को इसको सॉल्व करने में. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले तो आप इसको याद कर लो, बिकॉज अगर ये MCQ में आ गए तो आप सॉल्व करने में नहीं बैठोगे. सो इसको याद कर लो. अगर रेडियस ऑफ द अर्थ हाफ हो जाता है तो उसका ड्यूरेशन जो होता है नए दिन का, वो 6 घंटे का हो जाता है. मतलब 18 घंटे का लॉस हो जाएगा. 24 होता है ओरिजिनली एंड 6 आवर्स,
मतलब रेडियस आधा हो जाएगा तो कितने का रिडक्शन हुआ, 18 आवर्स का, ठीक है, ये भी याद रखना है। सो अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यस, ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। किसकी एप्लीकेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैंने अपनी एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है LCOAM, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, LCOAM, ठीक है। इसका ये क्या है, एक एप्लीकेशन है। यस, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, बिल्कुल सेम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन द initial momentum, initial linear momentum of the system and the final linear momentum of the system remains conserved। ये हो गया लीनियर मोमेंटम का। अब इसको एंगुलर मोमेंटम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और द रिजिड बॉडी, देन द एंगुलर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर सेम ही रहता है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम एंड इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आर सेम, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। यस, सो हम इसका सॉल्यूशन अगर ये आएगा, मतलब सब्जेक्टिव में फिर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले कि सिंस टाउ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल देखिए एक्सटर्नल वर्ड बहुत ज़रूरी है, इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका सिस्टम यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइंड है, ये आपका सिस्टम है, सो इसके अंदर अपने में बहुत सारे टॉर्क या फोर्सेस लग सकते हैं, बाहर से कोई नहीं लगेगा, अंदर से लग सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो टॉर्क एक्सटर्नल अगर आपका ज़ीरो है, और टॉर्क एक्सटर्नल ज़ीरो होगा इस केस में, क्यों, आपकी अर्थ है, अर्थ को कोई बाहर से थोड़ी खींच रहा है। देखो ये अर्थ है, आप सोच रहे हो सूरज तो है ना, बता दो क्यों, ये सूरज है, ठीक है, दिस इज सन, दिस इज अर्थ, ठीक है, ये दोनों में क्या है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। अब देखो इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एक सिस्टम मान लिया, इस पूरे को हमने एक सिस्टम मान लिया, ठीक है, ये जो अर्थ है एंड सन है, दोनों को हमने एक सिस्टम मान लिया। तो ये जो फोर्स है ये इंटरनल फोर्स हो गया। तो अब इसके अलावा इस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। अब ज़्यादा आप सोच में नत पड़ जाना कि दूसरे प्लैनेट्स या दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ भी तो अर्थ पे फोर्स डालेगी, वी डोंट कंसिडर, ठीक है। हम हमेशा फिज़िक्स में जब ग्रेविटेशन की बात करते हैं, सो वो भी प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशन, या प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स के बीच की ग्रेविटेशन, टू ऑब्जेक्ट्स की ही हम बात करते हैं। थ्री ऑब्जेक्ट्स का हम एक साथ चीज़ें नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो चीज़ों को सिंपल रखेंगे, ठीक है, एग्जामिनेशंस लेते रहते हैं हम। सो हम ये मान के चलेंगे कि अब इस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, कोई और टॉर्क नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क इज एब्सेंट इन दिस केस, ठीक है। इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज एब्सेंट देन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। सो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। सो I1 ओमेगा 1, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा, ठीक है, I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। सो अब क्या होगा, देखो I1 को आप कैसे लिख सकते हो, आई क्या होता है, mr², यस mr² होता है, लेकिन ये क्या है, अर्थ है। अर्थ क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड स्फीयर। फॉर द सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है 2/5 mr²। अब मैंने R1 क्यों लिखा, R1 बिकॉज रेडियस बदल रहा है, बट मास इज नॉट चेंजिंग। एक्चुअली क्वेश्चन में ये भी लिखा होना चाहिए कि मास आपका कंजर्व रहेगा, वो आपको मानना भी पड़ता है, तो मास चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। सो 2/5 mr² ओमेगा, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2/5 m 2/5 m। अब देखो R1² ओमेगा 1 इक्वल्स टू R2² ओमेगा 2, दिस रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें ड्यूरेशन चाहिए। सो हम वो कैसे निकालेंगे, देखो R1 की जगह R1 लिखो, ठीक है, ओमेगा 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2π/10। आपको फॉर्मूला पता होगा ओमेगा का क्या होता है, रेडियन या θ/टाइम होता है, यस θ/टाइम। सो थीटा को हम 2π लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा रेवोल्यूशन में 2π रेडियन घूम जाता है। सो R1² 2π/t। अब R2 को आप R1 की टर्म्स में लिख दो ताकि आप कैंसलेशन कर सकें। सो R2 क्या है, R2 आपका R1 का आधा है, ठीक है, तो यहाँ लिख दो
r1/2 होल स्क्वायर, और यहाँ भी आप लिख दो कि t1 आएगा 2 पाई अपॉन t2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ठीक है, और r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर भी कैंसिल, ये 1/4 आ जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ 1/t1 विल बी इक्वल टू 1/4 t2। अब इसको दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, दोनों ऊपर चले जाएंगे, t1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ t2, ठीक है। सो t2 निकालना है हमको, t1/4, t1 हमें पता ही होता है भाई 24 घंटे होते हैं दिन में, बाय 4, 4 6 24, 6 आवर्स, ठीक है। थोड़ा सा क्लमजी हो गया आई नो, बट यू गॉट द, ठीक है। सो ये आपका आ गया 6 आवर्स। मेन चीज़ इसमें क्या है, थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, ये दिख रहा है। सो मेन चीज़ इसमें क्या है, मेन चीज़ इस क्वेश्चन में यही थी कि आपको एप्लीकेशन लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद बस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करनी है। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आप कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट कर पा रहे हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है अगर आप यहाँ पे वैसे mr² भी लिख दोगे, हालांकि वो कॉन्सेप्चुअली गलत है, आपके नंबर कट जाएंगे, बट तब भी वो कैंसिल हो ही जाना है, तब भी वो कैंसिल तो हो ही जाए, m से m कैंसिल हो जाएगा, r1 r2 तो आना ही है, लेकिन आप ठीक लिखना, ठीक है, 2/5m 2/5m, r² तो है ही है। सो ये आप लिखना, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये जो कंडीशन है ये आपको पता होनी चाहिए, एंड देन बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको काम करना, और ये आप याद भी रख लेना, दिस रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर, कि इसका जो आंसर 6 RC होता है जब अर्थ का रेडियस हाफ हो जाएगा। अब इसमें और भी बहुत सी वेरिएशंस बन सकती हैं इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप खुद सोचो, 1/2 की जगह रेडियस हो जाए 1/4, 1/8, 1/3, कितनी वेरिएशंस है, बहुत सारी वेरिएशंस है। सो दिस इज़ द बेस, ठीक है, ये बेस है। अब इसके जैसे हज़ारों क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो और लगा लो प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद आपको ये वाले क्वेश्चन करने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दैट्स द टाइम वेस्ट, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको, कि कम टाइम में आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। सो क्लियर है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और हम क्या करते हैं, एक असर्शन रीज़न का क्वेश्चन लेकर आते हैं। सो अब हम करते हैं एक असर्शन रीज़न का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा है। सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन एम्स एग्जामिनेशन, ठीक है, 2005 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, कोई इसमें कोई हाई फाई साइंस नहीं लग रही है, ठीक है। सो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में आपको असर्शन दे रखी है, मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। सो असर्शन इज़ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, फॉर अ सिस्टम ऑफ particles, for a system of particles under central forced field, under central forced fields, central forced, under central force field, the angular momentum is conserved, the total angular momentum is conserved, ठीक है। दिस इज द असर्शन, एंड व्हाट इज द रीजन गिवन इन द क्वेश्चन, रीजन आपका गिवन है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन सच अ सिस्टम इज 0, द टॉर्क acting on such a system is 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एम्स लेवल का क्वेश्चन है, एम्स 2005 में पूछा गया, हालांकि कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, वैसे एक बस इसमें वर्ड है जो कि आपको समझना पड़ेगा, और एंड अभी अभी जस्ट अभी अभी मैंने वो समझाया भी है। सो एक तरीके से हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है इसमें। सो आपका आंसर क्या होगा इसमें, पहले आप सोचिए थोड़ा, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। हो गया, सोच लिया आपने क्या आंसर होना चाहिए, वही आपके सेम ऑप्शंस है, ए मतलब दोनों ठीक है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बी मतलब दोनों ठीक है बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सी मतलब ए ठीक है बट आर गलत है, डी मतलब आर इज़ ट्रू बट ए इज़ फॉल्स। सो तो आपको पता ही है। सो अब आपका आंसर क्या है, चलिए मैं बता देता हूँ। सो असर्शन पढ़िए, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ तक सब ठीक था,
अंडर सेंट्रल फोर्स सिस्टम। हाँ, क्या मतलब वर्ड क्या इन्होंने अप्लाई करा, अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन सच सिस्टम इज जीरो। बहुत बढ़िया। सो कहना क्या चाह रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमें दे रखा है, सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंडर उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। सबसे पहले तो ना अभी ये भारी भरकम वर्ड देख के डरा मत, बहुत ईजी वर्ड है। सेंट्रल फोर्स फील्ड का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल फोर्स फील्ड का मतलब हो गया आपके वैसे वाले जो फील्ड लाइंस होती हैं, फील्ड मतलब फोर्स की जो फील्ड्स होती हैं जिनका एक सेंटर मतलब जिनमें एक सेंटर से फोर्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो एक सेंट्रल बॉडी होती है, वो बाकी पार्टिकल्स पे फोर्स अप्लाई करती है। अब आप इसके एग्जांपल सोचें। सबसे पहला एग्जांपल आपके दिमाग में आना चाहिए ग्रेविटेशन। सन बीच में, अगल बगल सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सेंट्रल फोर्स सिस्टम है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स फील्ड भी कह सकते हैं, ग्रेविटेशन है आपका, क्या कह सकते हैं आप, जो एटम जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस भी एक सेंट्रल फोर्स सिस्टम लगा रहा है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और भी बहुत से एग्जांपल, आपका मैग्नेटिक फोर्स, वो भी आपका सेंट्रल फोर्स सिस्टम हो सकता है। एक बीच में मैग्नेट रख दो, बाकी चारों तरफ आप आयरन फिलिंग्स रख दो, सो वो भी एक सेंट्रल फोर्स फील्ड की तरह काम करेगा, मैग्नेटिज्म। ठीक है, सो लेकिन अब इसका आंसर कैसे होगा? आप तो आंसर समझ में आ गया होगा अब क्या होना है। देखो, एक सेंट्रल फोर्स्ड फील्ड में, जैसे कि ग्रेविटेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें क्या टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है? बिल्कुल रहता है, हमने अभी भी पढ़ा, तभी तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आया वहाँ से। यस, बिल्कुल, टोटल एंगुलर मोमेंटम इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड इज कंजर्व्ड। क्योंकि क्योंकि क्यों रीज़न दे रखा है भाई, द टॉर्क एक्टिंग ऑन सच अ सिस्टम इज जीरो। उस सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क, यहाँ एक्सटर्नल मानेंगे हम, सो एक्सटर्नल टॉर्क उस सिस्टम में जीरो होता है, इसीलिए ये चीज़ होती है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द आंसर। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, रीजन जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ असर्शन रीजन एम्स 2005। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे पूछा। एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ असर्शन रीजन का। यस, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, टाइम वेस्ट होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। यस, द क्वेश्चन इज इफ़ देयर, असर्शन बोल रहा हूँ मैं, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, then the velocity of the center of mass remains constant. Yes, फिर से सुन लीजिए। assertion is, if there is no external torque on a body about its center of mass, then the velocity of the center of mass remains constant. Reason is the linear momentum of an isolated system remains constant. Reason is the linear momentum of an isolated system is constant. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ये। एंड दिस इज़ अ एम्स 2015 क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे दिया गया है। एसर्शन हमारी पहले देखते हैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को, कोई एक गलत तो नहीं है कहीं। अगर हम एसर्शन को देखें, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, एक बॉडी बना ही लेते हैं, चलो इतना बॉडी हो रहा है यहाँ पे। ये बॉडी बनाई, इसका यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास ले लिया हमने। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क, नो नेट भी बोल सकते हैं, नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा। टॉर्क को जनरली क्रॉस से या डॉट से दिखाते हैं, बिकॉज टॉर्क इज़ एन एक्सियल वेक्टर। या तो ये प्लेन के हमारा अंदर जाएगा या प्लेन से हमारा बाहर आएगा। ये बाहर के लिए साइन होता है, ये अंदर जाने के लिए। ठीक है, हमें वो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब सेंटर ऑफ मास को अगर हम क्या मान लें, एक एक्सिस मान लें। ठीक है, हमारी एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ मास है, तो इसके अबाउट कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या इस केस में कांस्टेंट
रहेगी कि नहीं ये आपको बताना है, ठीक है। सो क्या ये ठीक है या नहीं, ध्यान से सोचिए, बिल्कुल ध्यान से। टॉर्क ज़ीरो है, टॉर्क ज़ीरो है, इसका मतलब क्या, टॉर्क अगर ज़ीरो है सो दिस डज नॉट इम्प्लाई कि फोर्स भी ज़ीरो होगा, ठीक है। ये ये हमारा साबित नहीं करता ये स्टेटमेंट कि फोर्स भी जो होगा, एक्सटर्नल फोर्स, वो भी ज़ीरो होगा। हो सकता है, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, ये मैं घुमाना ऐसे चाहता हूँ इसको, ठीक है, घुमाना ऐसे चाहता हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में ऐसे ऐसे घुमाना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ मास ये, इसके अबाउट में ऐसे ऐसे घुमाना चाह रहा हूँ, बट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। सो क्या इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी? नहीं। देखो, मैं इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ ना, पीछे से या आगे से, मैंने यहाँ से इसको फोर्स अप्लाई कर दिया और ये ऐसे घुमा दिया मैंने इसको, ऐसे ऐसे चला दिया मैंने इसको, ठीक है, ऐसे मैंने इसको चला दिया। सो इस केस में इस केस में भी टॉर्क तो ज़ीरो ही होगा, क्यों? क्योंकि टॉर्क सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है। आपको पता होगा सेंटर ऑफ मास क्या है इस केस में, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि डोर को अगर हम ऐसे या ऐसे करते हैं, सो वो खुलता या मतलब उसमें कोई रोटेशन इफेक्ट नहीं आता। रोटेशन इफेक्ट कब आता है? जब आप परपेंडिकुलरली फोर्स लगाओ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अगर आप उसी की डायरेक्शन में लगा दोगे सो एफ आर साइन थीटा साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। सो टॉर्क तो ज़ीरो होगा बट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। और वेलोसिटी कैसे निकलती है? लीनियर, ये ओमेगा नहीं कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं कह रहा है। अगर टॉर्क ज़ीरो है, अगर टॉर्क ज़ीरो है तो एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगर नेट टॉर्क ज़ीरो है, जैसे कि फिर से समझिए, जब फोर्स ज़ीरो होता है सो डी पी बाई डी टी भी आपका कांस्टेंट रहे, डी पी बाई डी टी भी ज़ीरो रहता है, सॉरी। सो पी आपका कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है, पी आपका क्या होता है, कांस्टेंट रह जाता है। सो यू वेलोसिटी और वी वेलोसिटी आपकी इक्वल हो जाती है। ये होता है फोर्स के केस में। अब टॉर्क के केस में क्या होगा, टॉर्क अगर ज़ीरो हो जाएगा सो डी एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम का अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो भी आपका ज़ीरो हो जाएगा और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से ओमेगा और ओमेगा नॉट इक्वल आएंगे। मतलब लीनियर वेलोसिटी इस केस में, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी इस केस में कांस्टेंट रहेगी और इस केस में लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। सो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो। तो एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो होने से हम ये नहीं कह सकते कि एक्सटर्नल फोर्स भी ज़ीरो होगा। दिस डज नॉट इम्प्लाई। सो असर्शन ही आपकी गलत हो जाएगी। तो रीज़न पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ऑप्शन नंबर डी मार्क कर सके आ सकते हैं इस क्वेश्चन में। फिर भी हम इसमें रीज़न पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि रीज़न कैसे सही है, ठीक है। सो रीज़न क्या है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। मतलब कोई भी लीनियर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम यानी कि डी, ये आइसोलेटेड सिस्टम में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि फोर्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट मीन्स कि टॉर्क कांस्टेंट, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में हम फोर्स को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। जब हम टॉर्क का कांस्टेंट मानते हैं हम बोलते हैं, जैसे कि हम हर बारी वेलोसिटी बोल देते हैं, मोमेंटम बोल देते हैं, ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, लीनियर नहीं लगाते हम। ऐसी हम जब आइसोलेटेड सिस्टम बोलना होता है तो हम आइसोलेटेड सिस्टम को हम रेफ़र करते हैं कि लीनियर मोशन ऑफ द, जो लीनियर फोर्स जो लग रहा है, लीनियर मोशन जो है वो उसका कांस्टेंट, ठीक है। एंगुलर में जब हम बोलेंगे तब हम पहले बोलेंगे कि टॉर्क ऑन द सिस्टम इज़ ज़ीरो, ठीक। सो इसका मतलब आपका रीज़न ट्रू है, क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम ये वाले सिस्टम में, मतलब जहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, फोर्स ज़ीरो होता है, वे देयर इज़ मोमेंटम कंजर्व, ठीक है। मोमेंटम वहाँ पे, लीनियर मोमेंटम वहाँ पे कंजर्व्ड रहता है। सो आपको मेन चीज़ क्या समझनी थी इस क्वेश्चन में कि अगर टॉर्क ज़ीरो है सो ये पक्की बात नहीं है कि फोर्स भी ज़ीरो ही होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर फोर्स ज़ीरो है, ये भी समझ लीजिए, अगर फोर्स ज़ीरो है तो टॉर्क पक्की बात है ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा। सो यहाँ पे अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पक्की बात है ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अगर ये ज़ीरो है तो पक्की बात नहीं है कि ये भी ज़ीरो है कि नहीं, ठीक है। ये दोनों टर्म्स भी बैठी हुई है, हो सकता है इन दोनों में से कोई ज़ीरो हो जाए, लेकिन अगर ये ज़ीरो है तो पक्की बात है ये तो ज़ीरो हो ही जाना है,
ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था कि आप एंगुलर वाली चीज़ों को इससे कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज। यस, सो अब हम बढ़ते हैं आगे। एक हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। चलिए करते हैं। So now we will do a question on rotational equilibrium. आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पुले वाली क्वेश्चन करे होंगे जिसमें आप इक्विलिब्रियम करते हैं। अब रोटेशन में इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे, लेट्स सी। सो आपके पास एक फट्टा पड़ा है, ठीक है, एक वुडन सा आपका ब्लॉक तो नहीं है, एक तरीके की स्लेट है, ठीक है, वुडन स्लेट है। सो इसमें क्या है, इसको ऊपर से हैंग कर रखा है, ठीक है, ऊपर से इसको हमने हैंग कर रखा है। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हो रहा है, अब इसमें हमने कुछ मार्किंग्स भी की हुई है, ठीक है, इसमें हमने कुछ मार्किंग्स भी की हुई है। ठीक, सो मार्किंग्स कैसे की हुई है हमने, ये 0 पॉइंट है, ठीक है, ये दिस इज़ 0, ठीक, इस डिस्टेंस को हमने 0 माना है। एक डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर पे है, एक आपका 50 सेंटीमीटर पे है, और एक आपका 75 पे है, एंड दिस इज़ 100। ठीक है, ठीक, एक काम करते हैं, इसको बस यहीं तक रहने दें। 0 यहीं से स्टार्ट हो रहा है एंड ये यहाँ पे 100 पे ही ख़त्म। ठीक है, ये उससे आगे जाएंगे, आप ये समझिए 0 से लेके 100 तक जा रहा है, और ये बिल्कुल साइड में ये लगा हुआ है और बिल्कुल साइड में ये अटैच हो रखा है वॉल से। ठीक है, अब एक और चीज़ हमने क्या करी है, इसका मास जो है, इसका जो मास है पूरे स्लेट का, वो स्मॉल एम है। ठीक है, एक मास हमने ये 75 से यहाँ हमने नीचे हैंग करवाया है, उसका मास है 2 है। ठीक, अब हमें फाइंड करना है क्या, ये T1 टेंशन, T2 टेंशन, ये दोनों टेंशन्स हमको फाइंड आउट करनी है। अगर क्या, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और यहाँ पे हमें ये T1 और T2 फाइंड करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ये, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो सेंटीमीटर्स में दे रखे, ठीक है, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में नहीं है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका जब हमें क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लीनियर मोशन को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, मतलब देखो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा, वर्टिकल में फोर्स लग रहा है। सो पहले हम वर्टिकल मोशन को हम बैलेंस करेंगे कि कहीं ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है ऐसे ऑब्जेक्ट, पहले हम उसको बैलेंस करेंगे, उसकी एक इक्वेशन बनाएंगे, देन उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट ऐसे तो मूव नहीं हो रहा, ऐसे आपने देखा होगा कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर जाते हैं। सो ऐसे तो कहीं मूव नहीं कर रहा, तो वो लीनियर मोशन तो होगा नहीं, वो क्या होगा, एंगुलर मोशन, रोटेशन मोशन, वहाँ पे हमें टॉर्क को कंजर्व करना पड़ेगा। सो इन दो इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो बहुत ईजी है कि हम लीनियर मोशन को हम कंजर्व कर देंगे। अब लीनियर मोशन को हम कैसे कंजर्व करेंगे वो देखते हैं। देख ध्यान से, ये जो एम है पूरा का पूरा मास, इसको हम कहाँ मान सकते हैं, ये हम मान सकते हैं 50 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इसको मान सकते हैं कि ये कहाँ लग रहा है, 50 सेंटीमीटर पर ये जो मास है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, वहाँ हम मान सकते हैं। सो हम इसको फोर्स को बैलेंस करवाएंगे कैसे, लीनियर मोशन को हम बैलेंस कराएंगे इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। वी कैन राइट T1 प्लस T2 अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू mg प्लस 2mg डाउनवर्ड फोर्सेस। ठीक है, सो T1 प्लस T2 कम्स आउट टू बी 3mg। ये आपकी होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी होगी पहली इक्वेशन। ठीक, T1 प्लस T2 3mg, ये आपकी होगी पहली इक्वेशन। अब आप करेंगे टॉर्क को बैलेंस। ठीक है, ये तो हो गया ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ना हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लेते हैं एक पॉइंट। आप ध्यान से सुनो, ये बुक है मेरे पास, ठीक है, दिस इज़ द बुक। अब ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर, रोटेशनल मोशन भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब ये किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क ले लो, यहाँ, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, तो टॉर्क ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेशनरी है, ये ऐसे कहीं से भी गोल गोल नहीं घूम रहा। सो टॉर्क हर पॉइंट पे ज़ीरो ही आएगा। आप कोई सा भी पॉइंट चूज़ कर सकते हो, आपकी फ्रीडम है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो हर पॉइंट पे टॉर्क ज़ीरो ही आएगा। सो अगर हर पॉइंट पे यहाँ पे टॉर्क ज़ीरो आना है, सो हम क्या ऐसा पॉइंट चूज़ करेंगे जहाँ से कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। अब ऐसा पॉइंट कौन सा होता है, ध्यान में रखिएगा। ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस मिल रहे होते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस मिल रहे होते हैं, वो वाले पॉइंट पर हम क्या मानते हैं कि इस पॉइंट पे टॉर्क ज़ीरो है। ठीक है, उस पॉइंट से हम सारी एनालिसिस करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है रेड, टॉर्क के फॉर्मूले में डिस्टेंस भी आता है। सो वी हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। सो अगर हम किसी एक पॉइंट पे, लेट्स से यहाँ पे अगर हम टॉर्क को ज़ीरो मान लें कि इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये इक्विलिब्रियम है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं करेगी। सो मैं कोई सा भी ये कोई सा भी पॉइंट ले सकता हूँ, किसी पे भी वो रोटेट नहीं करेगी। सो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया कि इस पॉइंट पे वो रोटेट नहीं करेगी। अब ये क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि इस पॉइंट पे T2 जो फोर्स है, ये कोई भी टॉर्क नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे R0 है। देखो फोर्स ये रहा, ठीक है, फोर्स ये रहा और आपका पॉइंट ये रहा, जहाँ से वो आप मान लो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फोर्स ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के तो ये अलॉन्ग लग गया फोर्स, तो टॉर्क ज़ीरो। सो इस पॉइंट पर टॉर्क ज़ीरो आ गया, मतलब हमें ये वाले फोर्स को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। सो एक चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। जितने कम वेरिएबल्स उतना ईजी क्वेश्चन। किसी भी इस पॉइंट के अबाउट भी आप कर सकते थे, ठीक है। सो मैंने इस पॉइंट के अबाउट करा, अब इस और इसके अबाउट भी कर सकते थे, बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपका T1 और T2 दोनों आ जाएंगे। तो आई होप आप समझ गए। तो अब हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर देते हैं। कैसे करेंगे, देखो T1 जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क करेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स ऊपर है, तो ये ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे जाएगा। फोर्स ऊपर है, ऊपर 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 ऐसे जाएगा, तो T1 जो ऊपर की तरफ का टॉर्क बनाएगा। सो T1 का जो टॉर्क बनेगा, टॉर्क बाय T1 शुड बी इक्वल टू, आप देखो ये जो दोनों हैं, ये नीचे क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपका बनाएगा। तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों सेम होंगे, तभी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम आएगा। और हमने ये पॉइंट पे हमने टॉर्क को क्या मानना है कि यहाँ पे टॉर्क ज़ीरो है, मतलब ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस फोर्स का कोई रोल नहीं होगा टॉर्क में, क्योंकि यहाँ पे आर इस फोर्स के लिए ज़ीरो है। आई होप आप समझ में होंगे कि कहाँ पे आपको पॉइंट चुनना है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉइंट को सही जगह पे चुनो। अब यहाँ पे चुन सकते थे, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, अब T1 टॉर्क, T1 के अबाउट टॉर्क है। अब ये जो फोर्स है, ये एम फोर्स, एम जी फोर्स, ठीक है, एम जी होगा। सो एम जी फोर्स और ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से लेकर यहाँ, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। ये कितना है, ये 0.5, ठीक है। 0.5 क्यों, मीटर्स में लेंगे ना, तो 0.5 एम जी, ठीक है, 0.5 इंटू एम जी प्लस, अब ये कितना है, ये 0.25, तो ये होगा 0.25 एम जी फोर्स और ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये टाओ T1 क्या होगा, टाओ T1 आपका हो जाएगा T1 इंटू 1 मीटर, क्योंकि ये पूरा 100 है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर है। सो ये हो गया आपका 0.5 प्लस 0.25, 0.75 mg, ठीक है। सो T1 की आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पे 3/4 m इंटू जी, ठीक है, 3/4 m इंटू जी। अब आप क्या करो, आप सिंपल सा यहाँ पे इसको T2 में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, T2 इक्वल्स टू 3 mg माइनस 3/4 mg। सो mg को आप ले लो कॉमन, ठीक है, 3 माइनस 3/4, सो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 माइनस 3 इज 9, ठीक है, 9/4, सो दिस बिकम्स 9/4 mg। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कैसे आप मैंने यहाँ पे T2 और T1 की वैल्यू निकाली है, ठीक है। T2 और T1 की यहाँ पे वैल्यू निकाल दी है। अब मैं अगर मान लो मास को मैंने m को 2 kg मान लिया, लेट्स से m इज 2 kg, सो T1 क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 2, इसको 10 मान लेते हैं g को। सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 न्यूटन T1। और T2 आपका क्या हो जाएगा 9/4 इंटू मास मैंने 2 मान लिया, 10 ये आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 9 ज़ा 45 न्यूटन। अब देखो
T2 क्या आ गया आपके पास, T2 आपके पास आ गया 45 न्यूटन और T1 आपके पास क्या आ गया 15 न्यूटन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो, तो T1 इतना दूर है, T1 का डिस्टेंस इतना दूर है, सो फोर्स उस पर कम लगेगा। जितना कम ज़्यादा दूर होता है उतना हम कम फोर्स लगाते हैं ना, जब तभी तो दरवाजे पे जो हैंडल होते हैं दूर लगे होते हैं। सो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स, और ये इतना पास है तो देखो 45 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है। सो आई होप, अगर मैंने इसको 2 kg मान लिया, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करा है मैंने कुछ। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।